सॉरी सॉरी, आई थिंक कि गलती से टैप हो गया, तो आई थिंक कि दैट वीडियो हैज़ बिन हाफ हो गया। तो दिस इज़ काइंड ऑफ पार्ट 2 ना, तो ऐसा समझ लेते हैं। बाद में आई विल ट्राई टू ना, अगर हो सकेगा तो कंबाइन करके आई विल ट्राई टू अपलोड। ओके, सो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल। तो फर्स्ट लेट मी ट्राई टू ड्रॉ सर्कल। If this is the circle and this is the chord, so if this is the circle, then we know that its center is going to be origin, and radius of the circle is going to be 4. Radius of the circle is going to be 4. Okay, so the sum of the squares of the length of the chord intercepted, length of the chord. So this is the length of the chords. Okay, so the equation of line is x plus y equals to n, no, n. Okay, so if I try to find out length of the chord, no, so for length of the chord, first we know that its radius is 4. So if somehow we can find out this length, this distance, by using Pythagoras theorem, we'll find out this. And to find out complete length of the chord, we will just double it. Let me call this origin A, B and C. Okay, चलो ट्राई करते हैं। तो आई थिंक इफ दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस लाइन, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस लाइन इज गोइंग टू बी x0 y0, so it is going to be mod of n. I think n is a natural number, so we do not need to take its mod, divided by root over 1 square plus 1 square, that is root 2, so that is going to be length of this. So by simplification we'll get this as a n by root 2, yes or no? Mod of n, that is going to be still n, because n is a natural numbers and natural numbers are always positive. So if this is n by root 2 and this is 4, this length is 4, so then this length is going to be root over hypotenuse square, that is 4 square, that is 16, minus square of this, that is n square, divided by 2. And the length of the complete chord is going to be its double, no? And it is saying कि अच्छा, first we'll try to find out the value of length of the chord. So length of the chord, we know कि n is natural number, so n should be equals to 1. So if I first put n equals to 1, it is going to be 16. पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 16 to the 32, so it is on twice root over 32 minus n square divided by 2. Okay, so if I put n equals to 1, so it is going to be 32 minus 1, means 31 by 2, so it is going to be, मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है, that was 2 root over 32 minus n square divided by 2. Okay, so if I put n equals to 1, it is going to be 2 root over 31 by 2. यही होगा ना, चलो ठीक है। हाँ, if I put n equals to 2, तो if I put n equals to 2, it is going to be 2 root over 32 minus 2 square is 4, so 32 minus 4 is going to be 28 by 2, yes or no? Okay, next if I put n equals to 3, it is going to be 2 root over 32 minus 9, and 32 minus 9 is going to equals to 23. If I put n equals to 4, so I think 32 minus 16 is 16, so it is going to 2 root over 16 by 2. And if I put n equals to 5, so it is going to be 2 root over 32 minus 25 is going to be 7 by 2. Can we put n equals to 6? I don't think so, because if I put n equals to 6, it is going to be negative, so we can take negative intercept. अब इनको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, इसका स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे. सो इफ़ आई स्क्वायर दिस,
तो आई थिंक 2 स्क्वायर इन एवरीथिंग, सो 2 स्क्वायर एवरीथिंग मीन्स विल एड 2 स्क्वायर दैट इज 4 and divided everything by 2, तो divide by 2 and in the numerator we'll had 31 plus 28 plus 23 plus 16 plus 7 ना, तो इन सबको ऐड करके सिंप्लीफाई करके we'll get the answer. ठीक है, तो आई थिंक you can do it ना, तो कर लेना and we'll get the our answer. तो आई थिंक 210 आएगा ऐड करने के बाद, देख लेना. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं. द टेंजेंट टू द नॉर्मल्स लाइंस एट द पॉइंट √3, 1 टू द सर्कल एंड द एक्स एक्सिस फॉर्म अ ट्रायंगल, दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ना, तो आई थिंक कि ये भी हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है. कैसे? फर्स्ट लेट मी ट्राई टू ड्रॉ सर्कल. इट इज सेइंग द टेंजेंट नॉर्मल एट द पॉइंट √3, 1 टू द सर्कल x स्क्वायर, 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4. इट मीन्स कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी एट ओरिजिन. चलो ओके. एंड 1, √3 एंड इट्स रेडियस इज 2. तो 1, √3 इज गोइंग टू बी आई थिंक कि समवेयर हियर ऑन द सर्कल. Okay, because distance from the origin is 2, it means it will on the circle. And x-axis, the tangent and normal. So if I try to draw tangent, so it is going to be, sorry, so tangent on this point, suppose for example here, यहाँ पे हो रहा है, यही मान लो, then this point is going to be this. So and normal is going to be something like this. So normal will pass through the origin, yes or no? Okay sir. Next what? So basically we need to find out the area of this triangle. Area of this triangle, so I think it is very easy. This length is going to be 2. No, radius of the circle, that is 2. Okay, and this length we can find out. Now how sir? We can find out by using the equation of tangent. So equation of tangent, the point is given and we can find out the slope of the tangent at this point. ना कैसे सर? बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, we'll get the slope. We will get the slope. तो आंसर आ जाएगा, कर लेना. ठीक है, और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो सर ऐसे बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल इज गोइंग टू बी, इफ इट इज दिस पॉइंट इज √3, 1, सो इट शुड बी height √3/1, so this angle should be 60 degree and this angle is 60 degree, so it means कि this angle is going to be 30 degree and this is 90 degree. तो अब तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल हो गया यार, एंगल पता चल गया तो फिर दिस साइड वी कैन फाइंड आउट एंड लेंथ ऑफ दिस साइड वी कैन फाइंड आउट, तो बहुत ही ईजिली आ जाएगा आंसर. चलो अगले क्वेश्चन पे. द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट. तो आई थिंक कि फॉर कॉमन टेंजेंट ना, तो फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई इफ दे आर टचिंग और नॉट. ठीक है, और टच कर रहे हैं तो उनका फाइंड आउट कर लेना. ठीक है, तो एक ही कॉमन टेंजेंट मिलेगा. ठीक है, चलो 2 या 3 हो सकते हैं. और ऐसे भी सोच सकते हो कि इफ दे आर कॉमन टेंजेंट, सो डिस्टेंस ऑफ दैट टेंजेंट फ्रॉम द बोथ लाइन शुड इक्वल्स टू सेम. तो उस वैसे भी एज्यूम करके कर सकते हैं. ठीक है, कि आई शुड एज्यूम द कॉमन टेंजेंट भी, कोई भी लाइन एज्यूम कर लो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी बी कॉमन टेंजेंट, एंड देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज़ करके आई थिंक कि 2 इक्वेशंस आर गिवन, इजी पीजी हो जाएगा. इट माइट बी अ लिटिल बिट लेंथी बट आंसर्स आ जाएंगे. अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द मेकिंग द इंटरसेप्टर लेंथ. ये भी क्वेश्चंस इजी है, ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 16. सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0, 4 एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2, 0 विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नॉट अ टेंजेंट. यार मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होंगे. ठीक है, कि यह सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0, 4 यहाँ पे टच कर रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 0, सपोज 2, 0 यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन्स इज नॉट एन, सो इट मीन्स कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गोइंग टू इक्वल्स टू 4 एंड h कॉमा 4 एज्यूम कर लो, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा h, और इससे हाँ डिस्टेंस फार्मूला से ए बी रेडियस होगा तो इट शुड आल्सो बी h, एंड बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। और उसके बाद तो यार कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज़ कर लो सब में। क्वेश्चन नंबर सर्कल्स whose equations are given, तो आई थिंक इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। विल फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल। विल अगेन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दोज टू सर्कल्स एंड सम ऑफ देयर रेडियाई। इफ दे आर इक्वल देन विल से कि दे टच ईच अदर, एंड इफ दे आर greater distance between the center is greater than the sum of radii, then we will say they are separated circle, and if it is less then we will say कि they are intersecting circle। और उसके बाद कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, लेंथ ऑफ द सेगमेंट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ए बी वैसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करना। इफ द सर्कल ना, if its center lies on this line, so I should assume center of the circle as h, k, और इस पे लाई कर रहा है ना, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि h n, इस पे सेटिस्फाई करेगा। so we'll get one equation, and if it is passing through this circle, तो we'll put the value, we'll get two equation, two variable c and g। तो I think we will find out the value of c and g, and after then find out the intercept made on the x axis by using the formula 2 rho 2 by g square minus c। लेट द यार ना कर लेना द नंबर ऑफ द लाइन्स इंटरसेक्ट द सर्कल। तो अगेन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं यूज़ करेंगे इसमें, क्या यूज विल फाइंड आउट द रेडियस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, इट शुड बी लेस देन रेडियस इफ दे आर कटिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बाय यूजिंग दैट विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो इसको भी डायमीटर ऑफ सर्कल सेंटर। तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना, इसको ट्राई कर लेना, एंड आई थिंक यू कैन डू इट ना। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आज एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर, तो फॉर टुडे आई थिंक बस इतना ही करते हैं। और सर्कल इजी है, क्वेश्चंस ईजीली हो जाते हैं। फॉर्मूला ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करते रहना, और जो भी क्वेश्चन वी कैन डू इन द क्लास तो उसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। एंड आई बिलीव यू कैन डू इट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।